So yesterday we performed this binary operation of addition on two data frames, data frame 1 and data frame 2, and we saved this operation of addition two data frames in this data frame 3. Okay, and the resultant, this was the resultant. Now we perform today what add function, then reverse add function, then subtraction and multiplication and division, and then we start revision for the first class test. But before going further, just let me change the what values again, so that के सब जगह values आ जाए एक बार, है ना, D1 D2 D3, और इसको भी हम फिर से D1 करते हैं, D2 and D3. It is okay, and 0 0 0 and 1 1 1 012 DF2 D1 D2 D11 D11 D22 D32 So it is our data frame 1, and it is data frame 2, and it is the output data frame in which we have saved this binary operation of addition. अब हम लोग क्या करेंगे, इस ऑपरेशन को हम कमेंट बना देते हैं, and now we perform this df3 data frame 3 is equal to df1 dot add function. So that means either we can find the addition of two data frames with the help of plus symbol, or by using which function, add function. And what is the syntax to write this add function to perform binary operations on two data frames? First of all, the name of first data frame, then dot operator, then the name of function, that is add, and within bracket name of second data frame. And these two operations will give the same output, but because it is given in our syllabus, so we must know these two methods के दोनों का मतलब क्या है, दोनों एक ही आउटपुट हमें प्रोवाइड करेंगे. इसको चेक करते हैं, एंड यू कैन सी, देखिए जो पहला आउटपुट आ रहा था 11 44 18 22 55 30 33 42, the same output is coming here also. ठीक है, so that means this statement and this statement will give the same output. And in the third method is what? You can write this statement by using which function? Data frame 1 dot reverse add. Reverse add का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ what? df2 plus df1, df2 plus df1. ठीक है, रिवर्स का मतलब ये होता है, जो आपने डेटा फ्रेम बाद में लिखा हुआ है वो पहले आ जाएगा, लेकिन आप 4 + 5 करो या 5 + 4 करो, बोथ विल गिव 9. ठीक है, सो df2 plus df1 is equal to df1 plus df2. एक ही बात है, डेटा फ्रेम 2 plus डेटा फ्रेम 1 is equal to डेटा फ्रेम 1 plus डेटा फ्रेम 2, and even you can check it, it will give the same output. इसको रन करेंगे तो देखिए ये भी सेम आउटपुट दे रहा है, 11 44 18 22 55 30 33 6 42, and you can check it here, the same output is coming here. ठीक है, so that means for addition we can use either method, plus symbol, add function or reverse add function. ठीक है, ये तो हो गया हमारा किसका हो गया, ये हो गया एडिशन का. अब हम लोग करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए. सब्ट्रैक्शन के लिए इसको पहले हम थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं कि आपको कंफ्यूजन ना हो. सब्ट्रैक्शन के लिए फिर से हमने डेटा फ्रेम 3 बनाया, डेटा फ्रेम 3 हम लोग यूज कर सकते हैं, इसको हमने कमेंट बना दिया है. इसीलिए डेटा फ्रेम 3 इज इक्वल टू डेटा फ्रेम 1 माइनस डेटा फ्रेम 2.
That means as we perform simple subtraction in mathematics, in similar way we can perform subtraction operation on data frame also by using which symbol? By using subtraction symbol. इसका मतलब क्या हुआ कि आप डेटा फ्रेम 1 के एलिमेंट्स में से डेटा फ्रेम 2 के एलिमेंट्स को माइनस कर रहे हो, ये मतलब हुआ। और जहां जहां मैचिंग एलिमेंट्स होंगे, जिनका रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स सेम होगा, वो माइनस हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और जहां जहां मैचिंग नहीं होगा, वहां पर क्या आ जाएगा? वहां नैन आ जाएगा। तो अभी तो मैचिंग एकदम एग्जैक्ट एग्जैक्ट परफेक्ट मैचिंग है, तो रिजल्ट हमारे पास मिलेगा हमको। ठीक है, रिजल्ट मिलेगा। इसको रन करते हैं एंड यू कैन चेक इट। डेटा फ्रेम 1, ये डेटा फ्रेम 1 की वैल्यूज है, डेटा फ्रेम 2 की वैल्यूज है। हम डेटा फ्रेम 1 में से डेटा फ्रेम 2 को माइनस कर रहे हैं एंड एज यू कैन सी the values of data frame 2 are greater than data frame 1, so output will be in which sign? It will be in negative sign, with the negative sign। और आप देख सकते हैं जितने भी हमारे वैल्यूज आ रहे हैं वो सब किस में? नेगेटिव में है, क्योंकि आप डेटा फ्रेम 1 को डेटा फ्रेम 2 से माइनस कर रहे हैं। एनी डाउट इन दिस आउटपुट? कोई डाउट किसी को इस आउटपुट के अंदर? हाउ इज इट कमिंग? बोलो बच्चों। हाँ जी बेटा, इस आउटपुट में ये आउटपुट किस तरीके से आ रहा है? कोई डाउट है किसी को? नो सर। क्या बात है माधव, आज ही आए तुम, डाउट नहीं है आपको? बहुत दिनों बाद आए सर माधव। हो गया है हाँ सर, फोन खराब था, बताया था सर, वो कल ही बताया था, आया आपने था बताया, आपने बताया था। चलो सर, कल ही आया था सर, आज से क्लासेस कल आया सर बन के, तो फिर आज से क्लासेस स्टार्ट हो गई सर मेरी, और आज से कर रहा हूँ। ठीक है, कोई नहीं है। अब हम क्या करते हैं? व्हाट वी कैन गेट दिस आउटपुट, द सेम आउटपुट, वी कैन परफॉर्म द सेम ऑपरेशन बाय यूजिंग व्हिच फंक्शन? बाय यूजिंग SUB फंक्शन। इस तरीके से लेट मी मेक इट कमेंट। इसको हमने कमेंट बनाया। नाउ डेटा फ्रेम 3 इज इक्वल टू d डेटा फ्रेम 1 डॉट SUB फंक्शन, सब फंक्शन, एंड विद इन ब्रैकेट द नेम ऑफ सेकंड डेटा फ्रेम, और उसका नाम क्या? डेटा फ्रेम 2। तो आप चाहे तो डेटा फ्रेम माइनस डेटा फ्रेम 1 माइनस डेटा फ्रेम 2 बोले, या df डेटा फ्रेम 1 डॉट सबट्रैक्ट फंक्शन डेटा फ्रेम 2 बोले। ठीक है, इनका मतलब एक ही है। ये और ये दोनों स्टेटमेंट एक ही आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। इसको हमने रन किया एंड नाउ यू कैन सी इट इज गिविंग द सेम आउटपुट एज गिवन बाय द प्रीवियस कमांड। ठीक है, दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है। अब हम क्या करते हैं? अब हमने यहाँ पे लिखा डेटा फ्रेम 4 इज इक्वल टू डेटा फ्रेम 4 में हम क्या कर रहे हैं? डेटा फ्रेम 2 माइनस डेटा फ्रेम 1 कर रहे हैं। ठीक है, डेटा फ्रेम 4 के अंदर क्या कर रहे हैं? डेटा इस बार रिवर्स कर रहे हैं, डेटा फ्रेम 2 में से डेटा फ्रेम 1 माइनस कर रहे हैं। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि डेटा फ्रेम 2 में से जब आप डेटा फ्रेम 1 माइनस करेंगे तो एलिमेंट्स का साइन क्या रहेगा? बताइए इस बार जो हमारे एलिमेंट्स आएंगे रिजल्टेंट आउटपुट के अंदर, उनका साइन क्या रहेगा? माइनस रहेगा, प्लस रहेगा, क्या रहेगा? सर पॉजिटिव में रहेगा। बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि इस बार आप डेटा फ्रेम 2 में से डेटा फ्रेम 1 माइनस कर रहे हैं। डेटा फ्रेम 2 ये है, डेटा फ्रेम 1 क्या है? ये है। 10 में से 1 गया, 10 माइनस 1 9, 20 माइनस 2 18, 30 माइनस 3 27। बट दिस टाइम और अर्लियर what all the elements of which type? Negative sign, but let me execute it and we can check it। देखिए आउटपुट फिर डेटा फ्रेम, ये डेटा फ्रेम 3 का आउटपुट है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? डेटा फ्रेम 3 में हम सेव कर रहे हैं डेटा फ्रेम 1 माइनस डेटा फ्रेम 2। लेकिन डेटा फ्रेम 4 में इस बार हमने क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया, डेटा फ्रेम 2 माइनस डेटा फ्रेम 1। ठीक है, इस बार क्या हो गया? जो रिजल्ट पहले माइनस में था, किसमें हो गया? प्लस में आ गया। ठीक है बेटा, डिफरेंस में आ गया। दोनों का क्या डिफरेंस है? यस और नो? यस सर। वेरी गुड। अब
हम इसी स्टेटमेंट को और किस तरीके से लिख सकते हैं, इसका एक तरीका और है, डेटा फ्रेम 4 इज इक्वल टू df2 dot sub and then data frame 1. That means even we can rewrite this statement like this also by using which function, sub function. ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। इसको लिखने का एक तरीका और है, बताएंगे मुझको इस स्टेटमेंट को, ये तो हमने यूज कर लिया एसयूबी से ना, बट हाउ कैन वी रीराइट इट बाय यूजिंग आर सब, रिवर्स सब से कैसे लिखेंगे इसको? बताओ बच्चों, इस स्टेटमेंट को हम रिवर्स सब से कैसे लिखना चाहे, कैसे लिख सकते हैं? प्लीज हेल्प मी। डेटा फ्रेम 4 इज इक्वल टू, बाय यूजिंग रिवर्स सब, हमें डेटा फ्रेम 2 में से डेटा फ्रेम 1 को माइनस करना है, बट दिस टाइम वी वांट टू राइट दिस स्टेटमेंट बाय यूजिंग आर सब, रिवर्स सबट्रैक्शन फंक्शन। कैसे लिखेंगे इसको? डेटा फ्रेम 1 डॉट रिवर्स सब डेटा फ्रेम 2। वेरी गुड बेटा, परफेक्ट, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक है, डेटा फ्रेम 1 डॉट रिवर्स सब डेटा फ्रेम 2, रिवर्स कर दिया आपने। आप डेटा फ्रेम 2 में से डेटा फ्रेम को 1 को माइनस कर रहा है एंड इट विल गिव द सेम आउटपुट, ये भी सेम आउटपुट देगा। इसको रन कीजिए आप एंड यू कैन चेक इट, इट इज गिविंग द सेम आउटपुट। ठीक है, डेटा फ्रेम ये 4 है, डेटा फ्रेम 3 है, और पहले भी यही आउटपुट आ रहा था। तो आपको बस ध्यान रखना है, थोड़ा क्वेश्चन ट्विस्टेड होंगे, थोड़े से क्वेश्चन ट्विस्टेड होंगे ना, कि आप स्टेटमेंट को अगर हम आर सब से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसका सिंटैक्स क्या होगा, डेटा फ्रेम 2 पहले आएगा, डेटा फ्रेम 1 पहले आएगा, कितना में ध्यान। अच्छा अब ये बताइए, मेरे पास ये स्टेटमेंट है, डेटा फ्रेम 3 इज इक्वल टू डेटा फ्रेम 1 माइनस डेटा फ्रेम 2, इसको हम कैसे लिखेंगे? बाय यूजिंग आर सब। डेटा फ्रेम 3 इज इक्वल टू, बताइए, डेटा फ्रेम 3 इज इक्वल टू, इसको हमें आर सब में लिखना है। डेटा फ्रेम 2 डॉट रिवर्स सब डेटा फ्रेम 1। बिल्कुल, डेटा फ्रेम 2 डॉट आर सब डेटा फ्रेम 1। ठीक है, आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, डेटा फ्रेम 2 डॉट आर सब रिवर्स सब, जो बाद में डेटा फ्रेम आएगा उसमें से पहले वाला माइनस होगा, रिवर्स हो जाएगा। तो वी हैव डन एडिशन, वी हैव डन सब्ट्रैक्शन, और वी हैव डन व्हाट, रिवर्स वगैरह भी। अब हम लोग करेंगे, अगला टॉपिक है इसका मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई हमें करना है, लेकिन मल्टीप्लाई से पहले हम रिवर्स सब में थोड़ा चेंज करते हैं। और चेंज हमने क्या करा, जो डेटा फ्रेम 2 है ना, एक मिनट जस्ट मतलब, ओके, जस्ट लेट मी चेंज माय डेटा फ्रेम। इसको मैं पहले अभी थोड़ा चेंज करके फिर हम शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। फिर उससे पहले दोनों डेटा फ्रेम में डेटा फ्रेम 1 डेटा फ्रेम 2, अभी दोनों में सेम एबीसी और दोनों में सेम रो इंडेक्स है, लेकिन डेटा फ्रेम 2 के अंदर हम चेंज करते हैं। हमने क्या करा, डेटा फ्रेम 1 एबीसी 012, डेटा फ्रेम 2 एबी 012। ठीक है, तो डेटा फ्रेम 1 और डेटा फ्रेम 2 का जो सिमेट्री है, इट इज नॉट आइडेंटिकल, इट इज नॉट सेम। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर डेटा फ्रेम 1 के अंदर देयर आर 3 कॉलम्स एंड 3 रोज, बट इन डेटा फ्रेम देयर आर 2 कॉलम्स एंड 3 रोज। अब उसके बाद हमने इस पर डेटा फ्रेम 3
डेटा फ्रेम 1 और 2 के ऊपर सब्ट्रैक्ट किया हमने, डेटा फ्रेम 1 माइनस डेटा फ्रेम 2, तो प्लीज टेल मी जब इसको आप डिस्प्ले कराएंगे डेटा फ्रेम 3 को तो क्या रिजल्ट आएगा, बस इसका मुझे रिजल्ट बताएं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये दोनों डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम 1, डेटा फ्रेम 2। यहाँ पर हमने डेटा फ्रेम 1 में से डेटा फ्रेम 2 को माइनस किया, ठीक है, और यहाँ पर हम डेटा फ्रेम 3 को डिस्प्ले करा रहे हैं। सो व्हाट एलिमेंट्स विल बी देयर इन डेटा फ्रेम 3 इन द रिजल्टेंट डेटा फ्रेम। जो बच्चे कल थे वो ट्राई करें एक बार। अर्षित बेटा टाइम से जोड़ किया करो, आप लेट आए आज भी। सर आज टाइम पे आ गया था। अच्छा चलो, बताइए स्नेहा, आप ट्राई करोगे बच्चे? सर नैन शो करेगा कॉलम सी में। वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर। नैन शो करेगा कॉलम सी में, वेरी गुड सूर्य प्रकाश, गुड। और ए और बी की वैल्यू सब माइनस होके माइनस आ हो जाएगा जाएगा, आउटपुट। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है ना। जहां जहां उसको मिसमैच मिलेगा वहां पर क्या शो करेगा, नैन शो कर देगा। इसको आप चला के देखिए F5, देखिए केवल सी में क्या आ गया, नैन आ गया। क्यों? क्योंकि ए और बी तो मैच हो रहा है, 0 1 2 भी मैच हो रहा है, तो वहां पर कितना आ गया, जो मैचिंग हो रहा है वहां पर रिजल्टेंट आ गया, और जहां पर मैच नहीं हो रहा वहां पर क्या आ गया, नैन आ गया। एक बार और चेंज करते हैं, इसको हमने चेंज करा 0 1 2, यस। Now this time data frame 1 ABC is 0 1 2, data frame 2 AB and 0 1 20, 0 1 20। अब हम क्या कर रहे हैं, डेटा फ्रेम 3 को हम कर रहे हैं फिर से अगेन, डेटा फ्रेम 3 इज इक्वल टू डेटा फ्रेम 1 माइनस डेटा फ्रेम 2। इस बार क्या रिजल्टेंट आएगा, दोनों डेटा फ्रेम आपके सामने विजिबल है, डेटा फ्रेम 1 माइनस डेटा फ्रेम 2। बताओ बच्चों। कॉलम सी और रो 20 की वैल्यू नैन शो करेगी। बिल्कुल, कॉलम सी और रो 20 की वैल्यू क्या शो करेगी, नैन शो करेगी, और बाकी भी क्या हो जाएगा, जहां पर मैच हो रहा है 0 1 के लिए, 0 1 के लिए 0 ए और 0 बी की दोनों मैचिंग हो रही है, 1 ए 1 बी 1 ए 1 बी, जहां मैचिंग हो रही है उनका क्या क्या उस पे सबट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। इसको चेक करते हैं, गुड प्रकाश, सही बोला आपने, ठीक है। तो डेटा फ्रेम 3 इज इक्वल टू डेटा फ्रेम 1 माइनस डेटा फ्रेम 2। जहां मिसमैच है, सी कॉलम टोटली मिसमैच है और 20 रो इंडेक्स टोटली मिसमैच है, तो सी कॉलम के लिए और 20 रो के लिए क्या आएगा, नैन आएगा। देखिए सी कॉलम के लिए नैन आ रहा है और 20 कॉलम के लिए नैन आ रहा है, और वहां यस देखिए 2 कॉलम में मिसमैच है, सॉरी रो नंबर 2 भी इंडेक्स की मिसमैच है। रो नंबर 2 डेटा फ्रेम 1 में तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन रो नंबर 2 डेटा फ्रेम 2 के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है, तो 2 के अंदर भी क्या आ रहा है, कंप्लीटली नैन आ रहा है, ठीक है। कोई डाउट इस आउटपुट के अंदर बेटा, कि आउटपुट किस तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है? जो बच्चे कुछ दिन से एब्सेंट थे, अगर उनको डाउट हो मुझसे, सर हाँ यस। सर ये सेकंड वाले में पूरा नैन क्यों आया, एक बार वापस से एक्सप्लेन कर हाँ बेटा, दीजिए ना। ये सेकंड रो इंडेक्स में इसमें कह रहे हैं आप। हाँ सर। देखो डेटा फ्रेम 1 है हमारे पास, डेटा फ्रेम 1 के अंदर 0 रो, ठीक है, 0 रो डेटा फ्रेम 2 के अंदर भी है, मैचिंग हो रही है, 1 रो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन 2 रो यहाँ डेटा फ्रेम 1 के अंदर तो है, रो इंडेक्स 2 डेटा फ्रेम 1 में तो है, लेकिन रो इंडेक्स 2 डेटा फ्रेम 2 के अंदर नहीं है, तो ये रो नंबर 2 कंप्लीटली मिसमैच हो गई है। रो इंडेक्स 2 के जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए डेटा फ्रेम 2 में कोई भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स नहीं है, कंप्लीटली मिसमैच। एंड इन सिमिलर वे दिस रो इंडेक्स 20 which exists in data frame 2 is not available in data frame 1,
तो 20 के लिए भी मिसमैच हो रहा है डाटा, तो आप देख सकते हैं 20 के लिए भी नैन आ रहा है और 2 के लिए भी क्या आ रहा है, नैन आ रहा है। इसी तरीके से जो सी कॉलम है, सी कॉलम डेटा फ्रेम 1 में तो है लेकिन डेटा फ्रेम 2 में नहीं है, कंप्लीटली मिसमैच। जो मिसमैच हो रहा है तो यहाँ पे देखिए नैन आ गया इसके। और जहां जहां मैचिंग हो रही है, देखिए 0 a 10 और 0 a मतलब जब इनकी मैचिंग हो रही है 1/10 की, तो इनका रिजल्ट यहाँ पर आ गया 1 - 10 - 9। इसी तरीके से 2 - 20 - 18। ठीक है जानवी, क्लियर हुआ कुछ डाउट? यस सर। ठीक है, गुड क्वेश्चन यू आस्क्ड कि 2 में कैसा है, मुझको भी ध्यान नहीं रहा था जब मैं आपको बता रहा था, लेकिन आप देख सकते हैं डेटा फ्रेम 1 के अंदर 2 इंडेक्स तो है, रो इंडेक्स है 2, लेकिन ये रो इंडेक्स 2 डेटा फ्रेम 2 में नहीं है, यहाँ पे 20 है, इसीलिए 20 और 2 दोनों में नैन आ गया है। इसी तरीके से सी कॉलम डेटा फ्रेम 1 में तो है लेकिन डेटा फ्रेम 2 के अंदर नहीं, इसलिए नैन आ गया। ठीक है, इसको हम लोग फिर से प्रॉपर करते हैं और फिर हम शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन। क्या शुरू करते हैं? मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन के लिए लेट मी सेट इट आइडेंटिकल। आइडेंटिकल करते हैं ठीक है now so these are data frame 1 abc012, data frame 2 abc012, both the data frames are identical। अब इसके ऊपर हम क्या ऑपरेशन करेंगे, इस बार हम लोग ऑपरेशन करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। डेटा फ्रेम 5 is equal to data frame 1 into data frame 2। और यहाँ पे लिखा ऑफ डेटा फ्रेम ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं सब्ट्रैक्शन और इधर भी सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। डेटा फ्रेम 2 ठीक है, ठीक है। अब इस बार हमने क्या करा, डेटा फ्रेम 5 में इतना डेटा फ्रेम के अंदर हम दो डेटा फ्रेम्स की मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू सेव कर रहे हैं और उसको हम डिस्प्ले करा रहे हैं। क्या कराएंगे? डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है, अगेन इट इज a binary operation and why is it binary operation? Because it is using the two data frames, it is using two data frames, data frame 1 data frame 2 कंप्लीटली मैचिंग हो रही है, कोई भी रो इंडेक्स और कॉलम मिसमैच नहीं है, तो आउटपुट डेटा फ्रेम ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड यू कैन चेक इट इज गिविंग दी व्हाट कंप्लीटली मैच्ड रिजल्ट। 10 into 1 10, 20 into 2 40, 30 into 3 90 and 4 into 40 160, 50 into 5 250, 60 into 6 360, 11 into 7 77, 22 into 8 176 and 33 into 9 297। It is giving the perfect result। And what we can write this statement by using data frame 5 is equal to df1 dot mul, which function? Mul, as we have add function, as we have sub function, in similar way we have this function mul for multiplication, data frame 2 हम लिखा। ठीक है, और इसको बना देते हैं कमेंट। इस बार हम लोग इस फंक्शन को यूज करेंगे and you can check both the result, both the statements will give same output। सेम आउटपुट आ रहा है इस बार भी। ठीक है, तो आप चाहें तो ये मल्टीप्लाई सिंबल यूज करें और we can use this mul function also। Now the next is addition, sorry division। डिवीजन को यूज करते हैं और डिवीजन को यूज करने के लिए हमने किया
इसको मैं कमेंट बना देता हूँ जिससे कि आउटपुट में हमें ज्यादा ना देखना पड़े। फिर डेटा फ्रेम 6 इज इक्वल टू डेटा फ्रेम, इसको पहले कमेंट बना देते हैं, इससे करते हैं। यस, डेटा फ्रेम 6 इज इक्वल टू डेटा फ्रेम 1 डिवाइड बाई डेटा फ्रेम 2। ठीक है, दैट मीन्स आप डेटा फ्रेम 1 और डेटा फ्रेम 2 को डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में रिवर्स मल्टीप्लिकेशन का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि 4 into 5 is equal to 20 एंड 5 into 4 is equal to 20, दोनों का आंसर एक ही होगा। दोनों का आंसर क्या रहेगा? एक ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मल्टीप्लिकेशन भी सेम आंसर करता है, लेकिन डिवीजन में डिफरेंस हो जाएगा। पहले उसको अभी इसके डिवीजन कैसे करेंगे हम लोग। So data frame 6 is equal to data frame 1 divided by data frame 2 and यहाँ पर output data frame of division। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या कराया, डिस्प्ले करा देते हैं उसको। ठीक है, output data frame of division 0.1 0.1 0.63 because what we are dividing the elements of data frame 1 by data frame 2, so that means 1 divided by 10, 4 divided by 40, 7 divided by 11, 2 divided by 20, so that's why it is coming in fractional form, it is coming in float type। अगर आप उसको रिवर्स कर देंगे तो रिवर्स कैसे करेंगे, that means data frame 2 divided by data frame 1। Now this time what elements of data frame 2 will be divided by data frame 1। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, पहले अर्लियर क्या आ रहा था 0.1 0.1 0.6, but this time the values are coming 10 point 10 point and 1। ऐसा क्यों? क्योंकि this time the 10 divided by 1, 40 divided by 4, 11 divided by 7, 20 divided by 2 and so on, so that's why the result is coming in the what integer or fractional number or decimal value। लेकिन जो quotient है वो क्या है, more than 1 इस बार, more than 1 है। पहले क्या था, more than less than 1 थे, पहले क्या था, divisor was greater than dividend, because पहले आप डेटा फ्रेम 1 को डिवाइड कर रहे थे डेटा फ्रेम 2 के थ्रू से। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हमें डिवीजन सिंबल को यूज नहीं करना है। नाउ वी वांट टू यूज व्हिच फंक्शन, div। सेम मेथड है, डेटा फ्रेम 6 इज इक्वल टू डेटा फ्रेम 1 डॉट div डिवीजन एंड विद इन डिवीजन क्या नाम रखेंगे, डेटा फ्रेम 2। So what is the meaning of this statement? इसका मतलब यही हो गया, data frame 1 divided by data frame। These two statements will give same output and you can check it also। Divide क्या इसको हमने देखिए, आप data frame 1 को data frame 2 से divide कर रहे हैं, so it is giving again the result like this। और अगर आपने इसको रिवर्स कर दिया, r लगा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, now this time we are dividing the elements of data frame 2 by data frame 1। रिवर्स हो गया, इस बार data frame 2 को आप डिवाइड करें data frame 1 से, इसको भी चेक करो आप। अब देखिए रिजल्ट इस बार उल्टा हो गया, पहले 0 पॉइंट कुछ था, इस बार 10 पॉइंट आ गया, 10 पॉइंट 1 पॉइंट 10.0 2.75। सबसे से क्वोशंट इज मोर देन 1, क्वोशंट 1 से ज्यादा है, क्योंकि आपका जो इस बार डिवाइजर है इट इज लेस देन डिविजन। ओके क्लास, कोई डाउट किसी को यहाँ तक अभी? In the all these are the examples of binary operation, addition, subtraction, multiplication and division। Binary क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर हमने दो different data frames यूज करे हैं। There are two operands, इनको क्या बोलते हैं, operands कहते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर दो operands objects यूज होते हैं that is called binary operation। तो कोई डाउट किसी को यहाँ तक अभी बच्चों? No sir। अरे बच्चों, प्यारे बच्चों, कुछ तो बोलो कि सर डाउट है, डाउट ही डाउट है या कोई डाउट नहीं है? नो सर। No sir। अभिषेक आप बेटा बहुत लेट आए हैं। अभिषेक अभिषेक अच्छा चलो ठीक है बेटा, अभी हमारा मैंने सोचा कि कल से मैं लोग या आज से ही
रिवीजन शुरू करूंगा सीरीज का, जो आपके एग्जाम्स में आएंगे, सीरीज और डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम में कहाँ तक आएगा? बूलियन इंडेक्सिंग तक आएगा, बूलियन इंडेक्सिंग। बाइनरी ऑपरेशन मैं नहीं दूंगा, या दे भी सकते हैं, चलो हमने पढ़ा है। तो अगर आप कहें तो आज से शुरू करें या कल से शुरू करें रिवीजन? कल से सर। क्या बात है, कल से करते हैं। चलो ठीक है, कल से शुरू करते हैं। और बेटा पढ़ते रहो सब लोग, आप लोग।